जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. I welcome you all in my YouTube channel Exploring the Concepts. And today's my topic is from chapter number 7, that is protists and fungi. And जो आज का मेरा topic है is classification of fungi. और इसमें आज हम सबसे पहली क्लास Zygomycota डिस्कस करेंगे. And obviously whenever they have to classify one have to classify some of the organisms, so there should be some basis for the classification. So on which basis we are going to classify the group kingdom fungi? This is on the basis of the presence and absence of sexual reproduction, type of their sexual reproductive structures and method of reproduction. तो सबसे पहली बात है कि क्या उनमें sexual reproduction होती है या नहीं होती. पहले तो ये देखना पड़ेगा, और अगर होती है तो वो किस किस्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं. मीन्स कि जो उनके स्पोर्स हैं वो डिफरेंट हैं या वो क्या डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ये देखना पड़ेगा. देन मेथड, फिर हर ग्रुप का रिप्रोडक्शन का मेथड ही डिफरेंट है, तो उन्हीं की इसी बेसिस पे इन्होंने फंजाई को क्लासिफाई किया हुआ है. So let's start with the first of all we should go to know the type of the classes, different classes of fungi, right? So fungi are classified according to their structure and method of reproduction. ठीक है, जो structure है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी क्या structure है. Structure is basically the fruiting body of the fungi in which they are going to produce their specific fruit reproductive structures. So there are four main groups. One is common mold, Zygomycota. Then Ascomycota, sac fungi. देखो उनके common names दिए हुए हैं. ये इन सब ग्रुप्स के कॉमन नेम्स दिए हुए. ठीक है, ज़ाइगोमाइकोटा इज आल्सो कॉल्ड एज कॉमन मोल्ड्स एज दे आर मोस्ट कॉमन फंजाई ऑल ओवर द वर्ल्ड. देन एस्कोमाइकोटा, जो इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना, विच इज एस्कोस्पोर्स, दे आर प्रोड्यूस इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैक फंजाई. थैलीनुमा स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है. देन इज द बेसिडियोमाइकोटा, इसमें वो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है, फ्रूटिंग बॉडी है, तो उसके लिए उसका नाम क्लब फंजाई है. एंड देन फाइनली द लास्ट ग्रुप इज बेसिकली Deuteromycota. This group have some type of sexual reproduction, but it is not the true type of sexual reproduction. So there are four different groups which we are going to discuss in this lecture. ओके, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक और मेरे पास इमेज है, the four types, four classes of fungi depending upon the sexual spores in the specific group. Then Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, ये इनके स्पेसिफिक नेम्स हैं ग्रुप के, जो सिस्टमैटिक नेम आप कह सकते हो. और ये सारे ग्रुप्स वो हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअली प्रॉपर वे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें एग्जिस्ट करती है. while as far as Deuteromycetes are concerned, so this is the group in which we do not say that they have a specific type of the sexual reproduction, right? Okay, let's go a little further for the. So Zygomycota. Zygomycota is my today's topic, by the way. The first class of the fungi, and that is called as Zygomycota. They are also called as conjugating fungi. Now, why they are called as conjugating fungi? Please listen to me carefully. They are called as conjugating fungi because of having a temporary fusion. जो भी genetic material को transfer करने के लिए दो structures की confusion हुई ना, तो उसको आप कहते हो conjugation, right? ये ही similar process is also present in bacteria as well, right? So that is why the process of sexual reproduction going on in the Zygomycota is also called as conjugation, which is similar as that present in the bacteria. ठीक हो गया. So conjugation होती क्या है? इसका मतलब है कि कोई सा यानी बॉडी का कोई पार्ट फ्यूज करे, फ्यूजन हो, और वो फ्यूजन किस मकसद से हो? फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेटिंग फंजाई. देन सेप्रोट्रॉफ्स है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा है कि दैट दे आर सेप्रोट्रॉफ्स. सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर्स के ऊपर जो फूड लेते हैं, यानी कि दे कैन टेक फूड फ्रॉम द डेड और डिकेइंग मैटर. They will grow on the garbage, you can say, on the peels of the decaying peels of the fruits and vegetables, and the kitchen material, the kitchen waste obviously, और bakery foods, food items इनके काफ़ी favorite होते हैं. तो ये इनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स. बहुत
थोड़े से ग्रुप हैं, मेंबर्स हैं इस ग्रुप के जो पैरासाइट्स भी हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं, सेप्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ्स का मतलब है कि ये बेसिकली रिसाइकलिंग करते हैं, right? Recycling means they are helpful in a process called decomposition. I will discuss later in the lecture. बल्कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है था ये कि decomposition is the main type of duty, or you can say the main type of food by which they can help or serve the ecosystem as well. ओके, तो सेप्रोट्रॉफ्स हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ के ऊपर, प्लांट्स और एनिमल्स की वेस्ट के ऊपर और बेकरी फूड्स के ऊपर, और यहाँ से अपना फूड लेते हैं और उनके ऊपर ही ग्रो करते हैं। आपने अक्सर ब्रेड पे कभी फफूंदी लगे देखी है, दैट इज व्हाट इज द ज़ाइगोमाइकोटा। ब्रेड, कॉमन ब्रेड मोल्ड जिसको हम कहते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड पे रोटी भी लग जाती है। ओके, ये है जी अब आपके पास वो एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही थी कि ब्लैक जो ब्रेड पे लगती है। तो आपने जैसे देखा कि ये वाइट सा टिंच है, दरमियान में ब्लूइश ग्रीन सा स्ट्रक्चर कलर प्रेजेंट है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंगस जो कि आपकी ब्रेड को लगेगी। नाउ द स्ट्रक्चर, अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बेटे ऐसा है कि इसके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज स्टोलन, आपको इस फिगर में नजर आ रहा है ये stolon is the part of the fungus which is growing which grows along with the surface of the bread, along with the surface of the food, ठीक है। and then rhizoids, ये आ गई इसकी rhizoids क्या हैं? Rhizoids are the root like structure. First of all, they can help them in anchorage and obviously in the absorption of the food as well. सही, तो स्टोलन आ गया, राइजोइड्स आ गए, और फिर आप देख रहे हो एक लंबी सी कोई चीज़ ऊपर ग्रो कर रही है, लाइक अ फ्लावर, उसका फ्लावर स्टॉक की तरह की चीज़। तो दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर। आपको मेरा शायद ये इसमें एरो बना हुआ नजर आ रहा है, ये स्पोरेंजियोफोर्स है। स्पोरेंजियोफोर्स की टॉप पे जो स्ट्रक्चर है गोल सा, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। This is immature sporangium. These are maturing or mature sporangium, and this is the sporangium which has burst, right? जो fully mature था और अंदर इतने spores produce हो चुके थे कि वो burst कर गया। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और फिगर दिखाना चाहूँगी, ये। Now this dotted line is indicating you the surface on which this fungus is about to grow, or it is growing, like bread, right? That dotted line is indicating you the surface on which the fungus is growing like bread, right? That dot is bread. Bread के ऊपर आप ये देखो, that green structure is called as a stolon, and that branch structure which is originating from the stolon, it is called as rhizoids, and these are basically rhizoidal hyphae. This is a stolon hyphae, and these are sporangiophore hyphae, and on sporangiophore they have developed sporangia जिसमें ये sexual reproduction भी करते हैं, जिसके थ्रू और जिसके थ्रू ये asexual reproduction भी करते हैं। तो ये तो हो गया इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हवाले से बात एक। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि देन द कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पीछे जो था ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही थे इसके, कि इसमें स्टोलन है, राइजोइडल हाइफी है, स्टोलन हाइफी है, इसके अंदर स्पोरेंजियोफोर है, ये एसेप्टेट है, मींस वो हाइफी जिनके अंदर क्रॉस वॉल या क्रॉस सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, राइट? दे डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड cross cell wall, that is why they are called as aseptate hyphae. A very specific term is used for representing such kind of hyphae, that is cenocytic hyphae. So cenocytic hyphae या aseptate hyphae या non-septate hyphae are present in Zygomycota. Okay. और बिल्कुल उसी तरह नेटवर्क और थ्रेड लाइक आपने कभी देखा भी होगा कि इसको। और अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शंस आर प्रेजेंट, बोथ सेक्सुअल एंड asexual reproductions. Both of the reproductions are present in it. One is asexual reproduction, which is it is done through sporangiophore, spore formation. आपने मेट्रिक में पढ़ी थी spore formation, वो थी इसकी asexual type, और उसमें एग्जाम्पल डिस्कस भी हुई थी Rhizopus nigricans, जिसको हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड या कॉमन ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर फॉर्मेशन ही होगी, मगर विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। अब हम इसमें ब्लैक ब्रेड मोल्ड की ही कॉन्जुगेशन डिस्कस करने लगे।
Now the sexual reproduction which is basically the conjugation. अब ये सारा structure है, ये सारी figure है depicting you the whole structure. Okay, now this is the life cycle of Zygomycota. आप देख रहे हो जब तक ये स्पोर फॉर्मेशन आप देख रहे थे, स्पोरेंजियोफोर से स्पोर्स निकले, that is what is asexual reproduction, right? In asexual reproduction it involves only one parent, but as far as sexual reproduction is concerned, obviously it will take two parents, right? One is a big virus fungi में तो आप मेल फीमेल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसके अंदर डिफरेंशिएशन है प्लस साइन की और माइनस साइन की, राइट? पॉजिटिव स्ट्रेन एंड नेगेटिव स्ट्रेन, राइट? पॉजिटिव मेटिंग टाइप एंड नेगेटिव मेटिंग टाइप। जो इसका पॉजिटिव मेटिंग टाइप है वो, और बाय द चांस ऐसा हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव मेटिंग टाइप्स जो थे दोनों एक ही टाइम पे इसके अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है? एक ब्रेड के ऊपर दोनों के स्पोर्स एक साथ गिरे, जिससे क्या हुआ कि पता चला कि हमें कि दोनों एक ही टाइम पे जब उसके ऊपर फॉल कर गए तो दोनों ने, और दोनों की स्टोलन्स भी बाय द चांस एक दूसरे के इन कांटेक्ट आ गई, ठीक है? जैसे स्टोलन इन कांटेक्ट आई ना, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। इन्होंने इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे मैं जरा रेड कलर ले लूँ, लेजर ले लूँ, आई मीन ओके, ये देखो, ये जो गोल सर्कल है, यहाँ पे ये दोनों के स्टोलन फ्यूजन हो गई। फिर ये देख रहे हो आप प्लस स्ट्रेन नेगेटिव स्ट्रेन, ये दोनों की स्टोलन की फ्यूजन के बाद ये ऑपोजिट मेटिंग टाइप कनेक्ट हो गए, ठीक है ना? कनेक्ट होने के बाद जो ये मैंने आपको बताया कि ये ए सेप्टेट है, इनमें कहीं भी बीच में क्रॉस वॉल नहीं है, लेकिन जो ही इस वाले माइनस साइन का जो न्यूक्लियस था वो बिल्कुल इसके एंड पर आ गया, दोनों के ना एंड्स पर आ गया, उस वाले प्लस साइन वाला जो न्यूक्लियस है वो भी बिल्कुल इस सेंट्रल रीजन पे आ गया, और माइनस स्ट्रेन का भी जो न्यूक्लियस था वो बिल्कुल इस दोनों के इस लाइन के दरमियान में आ गया, और इन दोनों के पीछे एक सेप्टा डेवलप हो गया, राइट? ये सेप्टा डेवलप होने पे ये दोनों गेमीट्स में कन्वर्ट हो गए, गेमिटेंजिया इसे हम बोलते हैं, ठीक है? गेमिटेंजिया या गेमीट्स में कन्वर्ट हो गए। अब इन दोनों की होगी फ्यूजन, फ्यूजन होने पे दोनों की वो दरमियान की क्रॉस वॉल ये जो थी, ये वाली जो थी, बाय द वे दिस क्रॉस वॉल विल डिसॉल्व एंड बोथ ऑफ द न्यूक्लियाई विल फ्यूज, राइट? इसमें पहले प्लाज्मोगेमी हुई, यानी कि दोनों के साइटोप्लाज्म मिक्स हो गए, फिर कैरियोगेमी हुई, यानी कि दोनों के न्यूक्लियाई मिक्स हो गए। इसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी में बहुत ज़्यादा बीच में डिले नहीं होता, कि प्लाज्मोगेमी के होते ही साथ ही कैरियोगेमी भी हो जाती है। अच्छा, इसके बाद ये है जाइगोट। जैसे दोनों फ्यूज हो गए ऑब्वियसली, तो क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब ये इसकी फर्स्ट लाइफ का डिप्लॉइड फेज शुरू हो गया। तमाम तर फंजाई, मोस्ट ऑफ द फंजाई बल्कि कहना चाहिए कि ये डिप्लॉइड होते हैं, सॉरी हैप्लॉइड होते हैं, और ये एक जाइगोट बनना ही वो स्टेज होती है जिसमें थोड़ी देर के लिए डिप्लॉइड हो जाते हैं। अब इसमें मियोसिस पॉसिबल है। जाइगोट जो है जाइगोस्पोर में डेवलप हो गया, क्योंकि जाइगोट थी जो वो सेल था वो थोड़ा मेच्योर हुआ, बड़े साइज का हुआ, और उसके अंदर मियोसिस हुई। अब म्योसिस होने पर म्योसिस होगी उसके अंदर, और जैसे इसमें म्योसिस होगी फिर उसके ऊपर ये डेवलप हो जाएगा स्पोरेंजियोफोर, और उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ये तमाम तर स्पोर्स अब कैसे हैं? ये हैप्लॉइड हैं, ये उसी तरह प्लस मेटिंग टाइप और माइनस मेटिंग टाइप के हैं, और हैप्लॉइड स्पोर्स के बाद ये कहीं फिर फॉल करेंगे इसी तरह, और उसी तरह अपनी पहले स्टोलन और राइजोइडल हाइफी डेवलप करेंगे, और फिर मेच्योर होकर स्पोरेंजिया, और हो सकता है इन्हें चांस मिल जाए फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का। सो दिस इज व्हाट इज जाइगोमाइकोटा। इस सारे टेक्स्ट में भी ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम थोड़ा रीड भी कर लेते हैं। व्हेन हाइफी स्टोलन ऑफ ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स मीट, hormones are produced that cause the tips of the hyphae to come together and form gametangia। मैंने आपको बताया gametangia फॉर्म होता है, यानी कि जो उनका न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल उनके उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जहाँ पे वो ऑपोजिट मेटिंग टाइप से कनेक्ट कर रही होती हैं, और वो और फिर दोनों तरफ ना एक एक सेप्टा डेवलप हो जाता है। मैंने आपको बताया इसको हम कहते हैं गैमेटेंजिया, और ये गैमेट्स ही होते हैं बेसिकली।
These structures become separated from rest of the mycelium by the formation of a septa. यही मैं बताई थी कि वो सेप्टा बना लेते हैं और प्लस माइनस फ्यूज करेंगे, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा, जाइगोट और प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इसमें डाइकैरियोटिक फेज आती ही नहीं है। मैंने नाम खुद ही नहीं लिया था मगर चले टेक्स्ट में लिखा है। सो द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ जाइगोस्पोर, फिर इसी जाइगोस्पोर के डेवलपमेंट की वजह से इस ग्रुप का नाम जाइगोमाइकोटा है। I'm sorry, zygospore germinate under favorable conditions और meiosis होगी, फिर उसके बाद स्प्लिट करेगा, हाइफा ग्रो अप करेंगे, स्पोरेंजियम डेवलप होगा, उसमें उसी तरह ही रप्चर होने पे स्पोर्स इधर उधर गिर जाएंगे। एक और मेरे पास फिगर है टू शो यू सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ एट द सेम टाइम। दिस इज द फिगर आई वांट टू शो यू। ये आप देखो कि ये वही उसी तरह प्लस स्ट्रेन, ये माइनस स्ट्रेन, ये इसकी हाइफी आ गया, स्टोलन हाइफी, ये इसके राइजोइडल हाइफी, या देखो ब्रेड में पेनिट्रेट किया हुआ है और ये वाला ब्रेड के ऊपर रहता है। और वो जो आपने शायद कभी फंगस देखी हो लगी हुई, बाल बाल सफेद सफेद बाल बाल से नजर आते हैं, तो ये वो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं जो नजर आते हैं। और जो ब्लैक ब्लैक से नजर आता है वो ये इसके स्पोर्स होते हैं जो कि सिस्ट से सराउंडेड हुए हुए होते हैं। ये देखो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है कि ये यहीं बर्स्ट करके स्पोर्स बना बना रहा है, तो ये ए सेक्शुअल हो रही है। और सेक्शुअल करने के लिए तो इन दोनों को फ्यूज़ करना पड़ेगा, फिर जहाँ भी फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करने पे वहाँ पे ये वाली चीज़ बननी चाहिए, ये जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर के बाद फिर जाइगोस्पोर ग्रो करेगा, फिर इसमें स्पोरेंजियम, और यहाँ भी फॉल करेंगे स्पोर्स, वहाँ जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी और न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। ये एक और बड़ी सिंपल सी फिगर थी। इसमें भी दो मीटिंग टाइप्स आए, दो मीटिंग टाइप्स फ्यूज हुए, फ्यूज होने पे जाइगोस्पोर बना, जाइगोट बना, जाइगोस्पोर बना, उसमें से स्पोरेंजियम डेवलप हुआ और स्पोरेंजियम फिर रप्चर हुआ, फिर स्पोर्स गिरे, यहाँ पे मियोसिस होगी और मियोसिस स्पोर्स जो थे वो भी हैप्लॉइड होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम थ्रू, you can write questions sorry, in the comments as well. Okay, next is I thank you all for the patience listening. So if you have any query, any question, I will ask you the question about this in my next lecture. तो पहले आपने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली आंसर करना होगा और फिर आप नेक्स्ट लेक्चर सुनेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।